तो हम अपनी मर्जी, ये गांधी जी को जाने तो ये समझे, अगर नहीं जाने तो बस उनकी तकलीफ है, हम क्या करें। क्या प्लान है वहाँ पे जाने के बाद, कितनी देर आप लोग रुकेंगे? क्या वो हमारी मर्जी है, हम इसको बताए क्यों ये ढीठ सरकार को। ये कभी गए क्या? कभी याद नहीं करते हैं। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप लोग? हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि संविधान का दिया हुआ अधिकार और इस फ्रीडम में हम सब शामिल हैं। तो क्या कर लेंगे ये बुज़दिल बैठे हैं अपने बिल में घुस के, ये बाहर निकल के बात करने के लायक नहीं है। राष्ट्र विरोधी सरकार कोई और हो नहीं सकती है, लेकिन राहुल गांधी ने अगर जाने का मन बना लिया है तो हम सब उनके साथ जाएंगे जरूर। गांधी के अनुयायी हैं और सत्याग्रह जिस तरह महात्मा गांधी ने किया उसी तरह हम लोग कर रहे हैं। गांधी I don't know. I'm told 30 January March. I'm told. I don't know. What is the plan to stay there? I don't know. How long you will be there? Are there any planning is something? ये देश गांधी का है, गांधी के असूलों का है और उन असूलों पे छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार लगातार कई दिन से उन पर अत्याचार कर रही है। इसी संदेश को कि देश अत्याचारी सरकार का नहीं गांधी का है, इस संदेश को लेने के लिए सारे लोग इंडिया लाइन के सब नेता वहाँ जा रहे हैं। गांधी के चरणों में जा रहे हैं, जहाँ गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी मार्ग, वहाँ जा रहे हैं। सर यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। हाँ, 3-4 बसें तो आपकी, 3 बसें, 6 बसें तो पुलिस की, सीआरपीएफ की, आरएएफ की खड़ी हुई। हाँ, तो डर के मारे बैरिकेड लगाए, लेकिन सब जा रहे हैं वहाँ 30 जनवरी मार्ग, गांधी जी के जहाँ रहते थे। Students of India have been raising two critical issues. They have lost faith in the examination system. The integrity of the examination system is questionable. They have lost faith in that. That needs to be fixed. Further, there has been consistent leaks in examinations. The NEET examination leak was the last straw in the camel's back. What we want is accountability to be fixed. Either the minister, the secretary or the NTA head. Nobody has been held accountable. Nobody is held accountable for any of these successive fiascos which happen in this government. Many train accidents happen. Only low-level signal men are held accountable. Pahalgam terror attack happens. Nobody is held accountable. Examination papers are leaked. Nobody is held accountable. We want accountability to be fixed. Well, this government takes credit for a lot of things. It must also be accountable for the failures. It is not willing to take accountability for the failures. And we also want to know what are they doing to fix the systematic repetition of paper leaks. They are saying they'll have fast-track courts. That is post-fact. After a leak happens, once after they investigate, if they catch hold of somebody, they'll take them to fast-track court. What we are asking is, what will you do to prevent the leaks? What systems are you putting in place? That nobody is explaining. So we are merely highlighting the concerns of the students of India. But sir, government is already clearly said that we are ready for the talk. Mr. JP Nadda. There are 2 points to it. One is a discussion and second is accountability. Both can go hand in hand. Accountability must also be fixed. Without accountability, because this is not a one-off incident. Successive leaks have been happening. Where is the accountability is what we are asking. But they are ready for the discussion. They are saying we are ready. As I said, there are 2 things have to happen. One is accountability and discussion. Both can go hand in hand. Why should one not happen, only one happen? देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी देश के छात्रों की आवाज रख रहे हैं और आज फिर से रखने जा रहे हैं। उनको नजरबंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। शर्म आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को एक तरफ जो है बीजेपी सरकार को बोलना चाहिए कि पेपर लीक रोकें, देश के युवाओं का भविष्य को खत्म करना रोकें। इसको रोकने की बजाय वो देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश की राजनीति, देश के लोकतंत्र में और कुछ हो नहीं सकता। युवा मोर्चा को आप लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से एक आंदोलन चल रहा है युवाओं का, यूथ का, क्या करेंगे? देखिए, आज का युवा सड़कों में है और वो सड़कों में इसलिए क्योंकि 12 साल की बेरोजगारी, पेपर लीक माफिया जो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान चला रहे हैं, उसके कारण देश का जो युवा है उसको लग रहा है देश में उनका कोई भविष्य नहीं है। इसके खिलाफ जो है युवा सड़कों में आया है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, मुझे लगता है ये संघर्ष चलता रहेगा। आप लोग कहीं जाएंगे अभी? आप लोग क्या आगे की रणनीति? हमारा आज मार्च था, हम इंडिया गेट जा रहे थे। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी देश के छात्रों के लिए संघर्ष करने जा रहे थे, लेकिन इससे डर कर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने उनको आज हाउस अरेस्ट करवा लिया है। दुर्भाग्य है हमारे देश में, देश के नेता विपक्ष अपने देश के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए आवाज रखने के लिए जा रहे हैं तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है।